So this is question number second. Question number second is percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3%. Means हमें given है delta m divide m into 100. इसको हम बोलेंगे percentage error in mass. Percentage error in mass. So हमें mass का error given है यहाँ पर 2%. फिर हमें गिवन है स्पीड का परसेंटेज एरर, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v बाई v इंटू 100, विच मीनिंग परसेंटेज एरर इन स्पीड, दिस इज गिवन 3%. नाउ वी हैव टू फाइंड डेल्टा k बाई k इंटू 100, दैट मीन्स परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. So we know the formula of kinetic energy. We know kinetic energy K is given as half mv square. Now in this equation number 1, there are three variables. K is variable, m is variable, v is variable, but half is constant. So जो kinetic energy में error आएगा वो m और v के कारण आएगा. It is due to m and due to v, क्योंकि half तो constant है. सो हम यहाँ पर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखेंगे. फाइंडिंग रिलेटिव एरर वी कैन राइट डेल्टा के बाई के. ये हो गया रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस हाफ इज ए कांस्टेंट टर्म 1/2, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. तो इस 1/2 में क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इट डू नॉट हैव एनी एरर इन्वॉल्व, इसको हम छोड़ देते हैं. उसके बाद हमारे पास है m मास. तो फॉर मास वी कैन राइट डेल्टा m बाई m और फिर है स्पीड, उसका पावर 2 है. देखिए यहाँ पे 2 पावर है तो 2 कोफिशिएंट हो जाएगा. देन वी राइट डेल्टा v बाई v. सो और ये दोनों हमारे अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं mv स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एरर के केस में ऐड हो जाते हैं. तो ये हमारे पास इक्वेशन हुआ डेल्टा k बाई k इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v. Now we can multiply both sides of this equation by 100. Multiply both sides by 100 to change into percentage error. So we get delta k by k multiplied 100 is plus minus delta m by m plus 2 delta v by v multiplied by 100. So as a result we get delta k by k multiplied 100 equal plus minus delta m by m multiplied 100 plus 2 delta v by v multiplied 100. So now this term delta m by m multiplied 100 is percentage error in mass. It represents percentage error in mass. And this delta v by v multiplied 100, it represents percentage error in speed. Both this error is given to us in question. As you can see, delta m by m given 2% and delta v by v given 3%. So put this value 2% and 3%. So then we get delta k by k multiplied 100 is plus minus 2% plus 2 multiplied 3%. So ये इसके प्लेस पे हमारा ये 2% आ गया और ये डेल्टा v by v into 100 के प्लेस पर 3%. So we find delta k by k into 100 is plus minus 3 into 2 6 and 8%. So this is error in the kinetic energy, which is 8%. So next question number 3 is length and breadth of a rectangle is given to us. So हम इसे ऐसा लिखेंगे, length हमें given है rectangle का L. This is 5.7 plus minus
0.1 सेंटीमीटर। देखिए इसमें ये जो 5.7 आपको गिवन है, दिस 5.7 इज द मीन वैल्यू ऑफ लेंथ, मीन या मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ आप कह सकते हैं, मीन भी कह सकते हैं। और ये जो 0.1 हमें गिवन है, ये क्या है, एरर इन लेंथ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। सो हम इस नंबर को ब्रेक करके ऐसा लिख देते हैं, देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पर L, L की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 5.7 है और लेंथ में एरर डेल्टा L इट इज 0.1, लेंथ में एरर दिस इज 0.1। सो इसको हम इस तरह ब्रेक करके लिख देते हैं। फिर हमें ये ब्रेथ गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2। सो गिवन breadth in the measurement is 3.4 plus minus 0.2 centimeter, which means 3.4 तो हमारा मीन वैल्यू हो गया, so we find b is equal to 3.4 and delta b is 0.2. b is equal to 3.4 and delta b is 0.2. Then question is calculate area of the rectangle with error limits. Now we know the formula of area of rectangle, so we write formula of the area of rectangle. See, so formula of the area of rectangle is formula of area of rectangle is area is equal to length multiplied breadth. सो अब हमारे पास पहले यहाँ पर लेंथ की जो मीन वैल्यूज हमें गिवन है, ये देखिए ये लेंथ का मीन वैल्यू 5.7, वो हम यहाँ एल के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हमें ये बी का मीन वैल्यू 3.4 गिवन है, वो हम बी के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। एरिया का मीन वैल्यू हम कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, या फिर 5.7 मल्टीप्लाइड 3.4, 5.7 मल्टीप्लाइड 3. So this is 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या देखते हैं कि आपने जो ये एरिया कैलकुलेट किया 19.38, देखिए इसमें डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, सो एरिया इज कैलकुलेटेड टू प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। लेकिन हमारा जो लेंथ हमें गिवन है 5.7, ये लेंथ, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है, वन प्लेस आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पे b की वैल्यू में भी डेसिमल के बाद वन प्लेस है। सो आपको इस एरिया की वैल्यू को राउंड ऑफ करके वन डेसिमल प्लेस पे लाना होगा। राउंडिंग ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस, राउंडिंग ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस, देन वी फाइंड एरिया इक्वल्स टू 8 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 19.4 हो जाएगा। 8 को राउंड ऑफ कर दिया हमने, इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसे प्रीसीडिंग वैल्यू 3 एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो वी फाइंड एरिया एज 19.4 करेक्ट अप टू वन डेसिमल प्लेस। नाउ सेकंड स्टेप इज कैलकुलेटिंग एरर्स इन द एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में एरर था तो एरिया में भी होगा। वी आवर नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग एरर इन द एरिया, मेजरमेंट ऑफ एरिया। सो अब एरिया का मेजरमेंट में हमें एरर कैसे निकालना है, देखिए एरिया का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ। वी फाइंड रिलेटिव एरर इन द एरिया डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू, लेंथ आ रहा है, लेंथ का रिलेटिव एरर लेंगे डेल्टा एल बाय एल, ब्रेथ आ रहा है, ब्रेथ का रिलेटिव एरर लेंगे डेल्टा बी बाय बी, और
पॉजिटिव नेगेटिव साइन आप अप्लाई कर देंगे क्योंकि एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो बाय दिस फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए। हम इस ए को उस साइड ले गए राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डेल्टा ए इज द वैल्यू ऑफ एरर इन द एरिया। तो देखिए डेल्टा ए का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, वो हो गया प्लस माइनस डेल्टा एल। डेल्टा एल मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर नोट किया था हमने, ये डेल्टा एल था 0.1 और डेल्टा बी है 0.2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, डेल्टा एल 0.1 डिवाइड बाय एल, डिवाइड बाय एल, एल इज 5.7, so divide by L, L is 5.7 plus delta B error in the breadth which is 0.2 here, ये हमारा डेल्टा बी था 0.2 गिवन है हमें। सो यहाँ हम पुट करेंगे डेल्टा बी के प्लेस पर 0.2 डिवाइड बाय बी, ब्रेथ इज 3.4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वी कैलकुलेट एरिया एज 19.38। तो अब आपको ये वैल्यू सिंप्लीफाई करना होगा और आफ्टर सिंप्लीफाई वी फाइंड डेल्टा ए इक्वल्स टू प्लस माइनस so it comes 1.47 after solving 1.47। अब देखिए यहाँ पर ये एरर भी पॉइंट्स में 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है, 2 डेसिमल प्लेसेस, बट the error given in the question, see the value of L and B here, लेंथ हमें 0.1 गिवन है, ब्रेथ का एरर हमें 0.2 गिवन है, इट मींस इनके अंदर एरर 0.1 प्लेस तक है डेसिमल तक, तो यहाँ हमारे पास 0.2 प्लेसेस तक आ रहा है। सो वी राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, round off to 1 decimal place, and when we round off to 1 decimal place we find delta a equal plus minus 1.5। डेल्टा ए इज, क्योंकि ये 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 एक इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, तो वी फाइंड डेल्टा ए इज प्लस माइनस 1.5। सो नाउ एरिया इज मेजर्ड एज mean value of area which was 19.4 plus minus error which is 1.5. This is the measured value of area and this is our answer. So next question is time period of oscillation of a pendulum is given। ये टाइम पीरियड का ना, हमें एक पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऑसिलेशन का फॉर्मूला गिवन है 2 पाई एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का ऑसिलेशन कैसे, देखिए पेंडुलम ऐसा था, एक फिक्स सीलिंग और ये यहाँ पे हमारे पास एक पेंडुलम है और ये ऑसिलेट हो रहा है। इस ऑसिलेशन में वो जो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में उसको टाइम लगता है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। So that time period is given in question. Time period is t is equal to 2 pi l by g। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमें g के अंदर का एरर कैलकुलेट करना है, सो हम इसको रीअरेंज करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी फाइंड t स्क्वायर इज 4 pi स्क्वायर l by g। इस से हम g का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज 4 pi स्क्वायर l by t स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें गिवन है ये स्टेटमेंट, आप इसको रीड करिए और देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है। लास्ट में लिखा है व्हाट इज द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ, व्हाट इज द एक्यूरेसी
इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g, मीनिंग आपको g का एरर कैलकुलेट करना है। सो मैंने इस इक्वेशन को t इक्वल्स टू 2 पाई l बाई g को रीअरेंज करके g का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ पर g की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर l बाई t स्क्वायर। मैं g का एरर अगर कैलकुलेट करूंगा तो देखिए g किसके कारण g में एरर होगा, बिकॉज ऑफ द एरर इन l, बिकॉज ऑफ द एरर इन t। 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर है। सो हम g में रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा g बाई g, रिलेटिव एरर हो गया g में। सो डेल्टा g बाई g इज इक्वल टू l, l में रिलेटिव एरर होगा डेल्टा l बाई l प्लस t स्क्वायर के लिए होगा 2 डेल्टा t बाई t, और एरर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं सो अब हम अप्लाई कर देंगे प्लस माइनस साइन। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट द परसेंटेज एरर। अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 change into percentage error, so we find delta g by g multiplied 100 equal plus minus delta l by l multiplied 100 plus 2 delta t by t multiplied 100। ये हमारे पास परसेंटेज एरर हो गया। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें ये l और t और ये सब वैल्यूज कैसे गिवन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है L is 20 सेंटीमीटर, सो L का वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, ये जो 1 mm हमें वैल्यू गिवन है ये L का एरर है, डेल्टा L गिवन है हमें, एरर इन द लेंथ। एंड देन टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड, ये टाइम की वैल्यू T गिवन है हमें। यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, ये 1 सेकेंड टाइम का एरर गिवन है डेल्टा T। सो हमें वैल्यूज गिवन है L 20 सेंटीमीटर, उसका एरर 1 mm, टाइम 90 सेकेंड और टाइम का एरर 1 सेकेंड। सो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ये वैल्यूज। L की वैल्यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और डेल्टा L गिवन है 1 mm। टाइम का वैल्यू गिवन है हमें 90 सेकेंड्स और टाइम का एरर गिवन है हमें 1 सेकेंड। So put these values in this equation number 1. We find delta g by g into 100 is plus minus delta L 1 mm by L 20 centimeter into 100 plus 2 delta t 1 second divide t 90 second multiplied by 100। सो आप ये mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ mm है यहाँ सेंटीमीटर है। सो वी चेंज इट 1 mm divide 20, 1 centimeter as 10 millimeter, so multiplied by 10। और we can write in this way, दोनों को ही मीटर में चेंज कर देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। So we can write 1 mm 10 raised to power minus 3 मीटर लिख देते हैं, 20 सेंटीमीटर 10 raised to power minus 2 मीटर लिख देते हैं, multiplied 100 plus 2 by 90 multiplied by 100। So when we solve this value plus minus and when you solve out it, it comes to 3%। After solving this value comes to 3%। So यहाँ हम लिख देते हैं आंसर 3%।